Good morning, Karan and Aishwarya. Am I audible properly or not? Yes, ma'am. Okay, thank you. So only two students are there, so we will wait for some time. Okay. Okay, students. Uh, Still only five students have joined, but we will not waste our time much. Let's see what was done in the last lab. Okay, I મેમ think. તમારો વોઇસ સરખો નથી આવતો. Okay, okay, wait. Is my screen visible to everyone or not? Yes. Okay. Now am I audible properly? Yes or not? Yes, ma'am. Okay, okay. So let's see what was done in the last question, last lab, right? We had started tutorial 1.4. We had seen algebraic identities and some examples. There was the question number one as expand the following terms, right? And seven questions were done. आई थिंक उसके बाद नीलम मैडम ने कुछ नहीं करवाया है, राइट? Yes, ma'am. Okay, okay. So let's continue this question now, and let's see the next question. Actually, next. Let's see the question number eight here. Write down. Wait, there is something wrong. Just a minute. Just a minute. Write down the eighth question, everyone.
The eighth question is as x by 2 minus 2 whole cube. What was the main question? It was as expand the following terms, right? So इसका expansion करना है. Okay, now we have the formula for cube as x plus y whole cube. Here the term is x minus y, right? So x minus y whole cube is as x cube minus 3x square y plus 3xy square minus y cube. To expand this term according to this formula, x cube means first term cube. So x by 2 whole cube minus 3x square, that is first term square, into y, that is second term, plus 3 into first term second term square, and then minus second term cube, right? So it will be x cube upon 8 minus 3 x square by 4 into 2 plus 3 x divided by 2 into 4 minus 8. So it's x cube by 8 minus, this becomes 2 here. So 3 divided by 2 into x square plus, this will be cut out, and 2. So 6x minus 8. Done everyone or not? Yes or not? Yes, ma'am. Guys, are you there or not? I'm not getting any response from you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, મેમ તમારો અવાજ સાવ ઓછો આવે છે ધીમો ધીમો okay. Wait, wait. Let me take my headphones. Now proper or not? નો મેમ હજી આવે ધીરો જ આવે છે ઓલું Okay, okay. ઝરમરી આવતો એવું આવે છે. હવે બરાબર છે? યસ મેમ. હા હવે બરોબર આવે Okay. Now ninth question, let's write. Ninth question is as 2x plus y plus 2z whole square. Not this one. Write down 3x plus 4y plus 5 whole square. I think this type of formula is done in the class, in the lecture, right or not? क्लास में हो गई है ये टाइप की फॉर्मूला या नहीं? યસ મેમ. Okay, so you can ને મેમ તમે expand ખાલી this. આઈડેન્ટિટીસ લખાવી છે બાકી ઓમ એક્ઝામ્પલ નથી કર્યા લેક્ચરમાં નથી કરાવ્યું મેડમે? આ આઈડેન્ટિટી નથી કરાવી તમને? આ ટાઈપના सम्स, આના सम्स લેક્ચરમાં નીલમ મેડમની વાત કરું છું. એટલે ખાલી આવા ફોર્મ્યુલા લખાવ્યા છે. અચ્છા, એક્ઝામ્પલ નથી થયા.
Okay, no problem. This formula is as x square plus y square plus z square plus twice xy plus twice yz and plus twice zx, like this. Okay, so according to this formula, this becomes first term square, then second term square, plus third term square, plus 2 into first second, right? Then 2 into second third, means 4y and 5, and then 2 into third first. Now calculate this, all the terms. This will be 9x square plus 16y square plus 25 plus 24xy plus 40y and plus 30x. Quite easy, right? મેમ આને અમારે અરેન્જ કે એવું કઈ ન કરવાનું હોય ને? ના બસ આજ તમારી ફાઇનલ ટર્મ કહેવાય. I think done, right? Next question now. Question number 10. It's like 2x minus 3y plus z whole square. Your next question will be like 2x minus 3y minus 4z whole square. મેમ 10 માં છેલ્લે ખાલી z જ છે ને? Ha, khali z. And let me write the last question of this question. This will be x minus 2y minus 3 whole square. Okay, here you can see this term is negative. Now we don't have any formula like this. We only have the formula like this. Okay, सब पॉजिटिव है तभी हमारे पास फॉर्मूला है. तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप की टर्म है तो हम इसको क्या करेंगे, x प्लस माइनस वाई प्लस z ऐसे कंसिडर करना है. एंड द सेकेंड टर्म विल बी माइनस वाई, नेगेटिव वाई. Okay, so let's write this. Let's rewrite this. It will be 2x plus minus 3y plus z whole square. Now you apply the formula of this square. Okay, it will be first term square plus second term is negative and third term square plus 2 for second plus 2 second third and then 2 third first. So now this will be 4x square plus minus 3 into minus 3, that will be positive 9
plus z square. See, plus minus minus. So minus 12xy is also plus minus 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 6yz and then plus ही है ये plus 4x 4zx. Similarly, next question, right? This one 2x minus 3y minus 4z whole square. सी दिस, ये y जहाँ पे है नेगेटिव, तो जहाँ पे y आएगा ना, सिर्फ अकेला y स्क्वायर नहीं, वो वाली टर्म्स नेगेटिव होगी, बाकी की पॉजिटिव. Okay, so this becomes 4x square plus 9y square plus 16z square minus 12xy. See this, plus minus minus and again minus minus plus, and 24yz and then again plus minus minus. This will be 16zx. ओके गाइस, मुझे ये जानना है कि क्लास में आपका कहाँ तक हुआ है, लेक्चर में कहाँ तक हुई है थ्योरी. कोई આ लीनियर इक्वेशन कुछ करवाया? નહીં ઓલું ફોર્મ્યુલા પૈતા ને પછી અમુક એક્ઝામ્પલ કરાવ્યા હતા. ઓકે, લિનિયર ઇક્વેશન જેવું કંઈ નથી કરાવ્યું. ઓકે. Okay, next now the last question. Try to solve this by yourself, everyone. See, all the terms are negative. So rewrite it. The first term will be minus x, second term will be minus 2y, and third term will be minus 3.
So the answer is like this: negative, negative, positive. Again negative, negative, positive, and again negative, negative, positive. I think all of you have done. Let's move on to the next slide. Next question now. Question number 2. This question number 1 was expand the following term. अब उसका उल्टा हमें करना है. Factorize the following terms, polynomials. Factorize the following polynomials. Okay, polynomials क्यों बोला? See, observe all these terms. These all are polynomials, right? This is all are polynomials. You can see. Okay, तो ऐसी polynomial अब आपको दी है और आपको ऐसे में convert करना है. ठीक है, तो हम first लेते हैं x square plus 4x plus, let write other terms, x square minus 2x plus 1. The third one, 9x square plus 12xy plus 4y square, and fourth, 16y square plus 8xy plus x square. So let us rewrite this term. Okay, so can we write this as x whole square? Then this will be 2 whole square, right? And if we write 2 into this first term and this second term, then this becomes 4x. Here the term is given 4x. So क्या किया हमने? इसको हमने rewrite किया. That's it. What is this now? This is the square of x plus 2. तो फैक्टर्स हो गए, x plus 2 into x plus 2. ऐसे फैक्टराइज ही करना था हमें. ओके, सिमिलरली इसको भी एक्सपांड ऐसे फैक्टराइज करो. कैसे लिख सकते हो इसको? Anyone? x minus 1. Yes, x whole square, then this will be 1 whole square, and minus 2 into first and last term. This becomes 2x. So the answer is x minus 1 whole square. Good. ये दोनों को आपको करना है सॉल्व यहाँ पे.
This will become 3x whole square. This will become 2y whole square. एंड 2 इंटू 3x और 2y लिखते हैं तो देखो कि ये बन रहा है ये 12xy. yes, so this is 3x plus 2y whole square. Similarly 4y whole square and x whole square minus करके 4y into x, this becomes 8xy, right? So this is 4y minus x whole square. Next, fifth one. મેમ 1 મિનિટ રાખો તો લાસ્ટ સ્લાઇડ. Okay, okay. ઓકે મેમ થઈ. Okay. So now fifth is as 3x square plus 2 square root 6 xy plus 2y square. Next is z square plus z plus 1 upon 4. Next, कर सकते हो ये खुद से. फिफ्थ. યસ મેમ. What is the answer? √3x plus √2y the whole square. Very good. This becomes square root 3 whole square. Then this becomes square root 2 into y whole square. स्क्वायर रूट में x और y नहीं लेना है, ठीक है. Seventh one, z whole square plus 2 into z into 1/2 plus 1/2 whole square. ओके, हियर ये कैसे करोगे? ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है. सी यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स, दो फैक्टर्स मिल रहे हैं और दोनों फैक्टर्स इक्वल है. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है. तो अब इस केस में क्या करोगे, कैसे फैक्टराइज करोगे? ये ऑलरेडी आपको पता है, ये स्कूल में आप पढ़ चुके हो. कैसे करना होगा? एनीवन? ફર્સ્ટ ટર્મ ને લાસ્ટ ટર્મ મલ્ટીપ્લાય કરીને વચ્ચેની ટર્મ સ્પ્લિટ કરીને. हाँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको कंसिडर करना है क्या? 1. और ये 8 है. 1 इंटू 8 8 होगा. नाउ 8 के ऐसे पार्टीशन करो सो दैट उनका एडिशन, ये ध्यान से देखना है, उनका एडिशन 6 मिले. क्या होगा? 8 1 जा 8, उनका एडिशन 9 हो गया. नहीं होता. 4 2 जा 8, एडिशन 6 होता है. यस. अब ये साइन किसको मिलेगी? ये किसके पास रखनी है? जो बिगर फैक्टर है उसके पास, मीन्स की इसके पास.
अब यहाँ पे एडिशन है तो दोनों की साइन सेम रहेगी, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो दोनों की अल्टरनेट साइन होती। अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, सपोज मान लो, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है इसलिए दोनों की साइन सेम रहेगी, तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा। गॉट इट? तो अब -6x की जगह पे ये फैक्टर्स लिखने हैं, तो -4x -2x प्लस 8। अब ये दोनों की पेयर्स बनाओ, इन दोनों की पेयर्स बनाओ, जो कॉमन है वो निकाल दो। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -4 बचता है। सेकेंड में से अगर -2 बाकी कॉमन ले लो तो मिलता है x -4। नाउ सी x -4 इज ऑल्सो कॉमन, so the remaining term is x -2। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बताना। सिमिलरली यहाँ पे भी મેમ ત્યાં તો થઈ જાય 6 6 36 क्या અહીંયા યસ ઓકે, પણ વચ્ચેની ટર્મ સેટ થશે ઇફ વી ના રાઇટ લાઈક વચ્ચેનું નહીં ધીસ, થાય અને અહીંયા એડિશન હોવું જોઈએ, સ્ક્વેર કરવો હોય તો। ઓકે, એટલે બધી જ ટર્મ સેટિસ્ફાઈ થતી હોય તો જ એ અપ્લાય થશે। तो 1 into 36 will be 36। नाउ 36 के पार्टीशन करो सो दैट उनका सब्ट्रैक्शन 5 मिले आपको। 9 4 છે यस गुड, 9 4 अब ये साइन किसके पास होगी, तो बड़े वाले फैक्टर के पास। अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट साइन होगी, नेगेटिव है इसीलिए। तो नाउ +5x की जगह पे ये दोनों को रखना है, तो +9x -4x -36। x is common, again 4 -4 is common, so the factors are x +9 into x -4। नेक्स्ट कौन सा नंबर आया, 9th। x² -5x + 6। नेक्स्ट इज x² -5x -6। यहाँ पे लिखते हैं भाई, सिक्स के पार्टीशन करने हैं सो दैट their addition will be 5। क्या होगे पार्टीशन, सिर्फ एक दो से ही मुझे आंसर्स मिल रहे हैं और अभी तो वो भी नहीं मिल रहे हैं, बाकी के सब क्या कर रहे हैं। मैम 3 2 3 और 2। ओके 3 and 2, yes good, 3 and 2। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों की साइन सेम रहेगी, और नेगेटिव नेगेटिव।
जस्ट वन, ये खुद से सॉल्व करो। क्या होंगे इसके आंसर्स? x minus 6 क्या x होगा minus इसमें? 1. यस, गुड। तो 6 के ऐसे पार्टीशन करने सो दैट उनका सबट्रैक्शन 5 मिले। तो 2 एंड 3 का सबट्रैक्शन 1 होता है, तो वो नहीं होगा। अब 6 1 सा 6 से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ये होगी साइन बिगर 1 के पास, ये नेगेटिव है तो दोनों की अल्टरनेट साइन। तो x minus 6 and x plus 1. Now here, see this, इस टाइप की टर्म हमने कहाँ पे देखी? अभी जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें देखी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनको सेट करते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर, देन 2y स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है? 5z होल स्क्वायर दिख रहा है। Ma'am, हाँ x minus 2y plus 5z. હા, એક મિનિટ, એ પછી આપણે જોઈએ, કેમ કે બધાને સમજમાં નહીં આવે। તમે તમારી રીતે સેટ કરી શકો છો। ओके, नाउ ये नेगेटिव को अभी साइड पे रखते हैं, ठीक है सबको। अगर हम लिखे ये 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, तो चेक करो कि ये टर्म यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म बन रही है, 4xy, यस बन रही है। फिर 2 इंटू सेकेंड थर्ड लिखे अगर, तो 2y एंड 5z, क्या बनेगा ये? 20yz, ये है, यस है। एंड देन 2 इंटू थर्ड फर्स्ट, 2 इंटू थर्ड फर्स्ट, क्या बन रहा है? ये 10zx, यस है। तो अब ये जो नेगेटिव टर्म है उनको ही सेट करना है सिर्फ, बाकी। तो नेगेटिव टर्म किसको देनी है? x को या 2y को या 5z को? तो जो भी कॉमन आपको दिख रहा है दोनों में, कौन सा कॉमन दिख रहा है? y कॉमन है, तो y को देनी है नेगेटिव टर्म। अब सब सेट हो गया, सी। ओके, सो दिस इज x minus 2y plus 5z whole square. मैम રાખજો થોડીક વાર। हाँ हाँ,
Okay, done or not? Yes. Yes, ma'am. Okay. So next 12th question. It's as 2x whole square plus y square by 3 plus 25 minus 2 square root 2 by 3 xy minus 10 y upon square root 3 and plus 10 square root 2 x. कर सकते हो खुद से. कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दिख रही है बट है नहीं इतना ट्राई कुछ. करशो मैम. हाँ. आई थिंक क्वेश्चन लिख लिया है राइट वो सबने. मैम. हम्म. √2x minus y by √3 plus 5 रूट 2x माइनस वाई. ओके. by यस यस. √3 हाँ. plus 5. वेरी गुड. होल स्क्वायर राइट. Yes. वेरी गुड. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो. ओके. कैसे करेंगे इसको. सी इसमें वो स्क्वायर वाली या सिंपल स्क्वायर वाली 3 टर्म का या डबल टर्म का कोई स्क्वायर नहीं लगेगा. क्या लगेगा यहाँ पे. क्यूब दिख रही है आपको. ठीक है. टर्म. तो क्यूब की फॉर्मूला का यूज होगा. तो कैसे करोगे. क्यूब की y फॉर्मूला plus कैसे है. 2z whole cube. यस. y प्लस 2z होल क्यूब. दिस इज 2z होल क्यूब. जब भी क्यूब वाली फॉर्मूला आपको दी जाए ना तो किसका क्यूब. 2 टर्म्स का क्यूब आपके पास होना चाहिए. फिर अकॉर्डिंगली आपको सेट कर देना है उसको. अब हम अगर 2 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म ये करें तो इस टाइप की टर्म ऊपर है वो चेक करना. एंड देन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. ये है टर्म. हाँ है. this becomes 6y square z. This is here. And this becomes 4 into 3, that is 12yz square. So this is y plus 2z whole cube.
Now next, set this term accordingly. दिस विल बी 3x क्यूब. बाकी की क्यूब वाली टर्म्स कौन सी है? ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, तो ये हो सकती है, क्या हो सकता है? 4 होल क्यूब. नाउ नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव टर्म आपको सेट करनी है. सेकंड अगर लिखे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड सेकंड टर्म, देन फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सॉरी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो चेक करो ये दो टर्म्स है ऊपर. हाँ है. So this is 3x minus 4 whole cube. Second one is, this is 5 cube, this is 3y whole cube. So this is 5 minus 3y whole cube, right? Now, next question. Question number 3. Evaluate the following by using suitable algebraic identities. Okay, first one is 102 whole square. Second is 46 whole square. Third is 42 whole cube. Not 42, 52, 53 actually. And fourth one is 42 whole cube.
ऐसा बोला है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, सूटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मीन्स कि जो भी आपको टर्म दी है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सी, ये हमारे पास एक टर्म दी है 102 होल स्क्वायर, और ऐसा बोला कि सूटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके। अब सूटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अगर हम चेक करें हमारी आइडेंटिटीज, तो किस टाइप की है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, या एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, इस टाइप की टर्म्स हमारे पास है, या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कोई दो नंबर के एडिशन में इसको स्प्लिट करेंगे, और उसको ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है सो दैट उनके ऊपर स्क्वायर की फॉर्मूला लगाई जाए, तो जो भी कैलकुलेशन आ रही है उनको हम विदाउट कैल सी हम उसको कैलकुलेट कर सके। ओके, तो अगर हम लिखते हैं 100 प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, सी 100 का स्क्वायर करना बहुत इजी है, 2 का स्क्वायर करना भी बहुत इजी है, ठीक है, या 100 इंटू 2 वो भी करना बहुत इजी है, इसमें कोई भी कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स प्रोसीड। क्या है स्क्वायर की फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सो दिस बिकम्स, ओके, क्या बनेगा ये? 100 स्क्वायर, तो जितने भी जीरोस है उसका स्क्वायर करो तो वो डबल हो जाएंगे। फिर ये 2 इंटू 2 4 इंटू 100 400 प्लस 4, दैट इज द आंसर इज, क्या होगा? 10404। गॉट इट? नाउ हियर, यहाँ पे भी क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे? तो इतना ध्यान में आपको रखना है सिर्फ कि ये जो एक्स्ट्रा नंबर था इसमें से इसको ऐसे सेट करना है सो दैट वो 5 से बिलो में हो, 5 से कम हो, इस हिसाब से आपको वो नंबर में इसको स्प्लिट करना है। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तब ही आप इसको 5 से अबो में जाओगे, बट वो भी 10 से बिलो में ही होना चाहिए। तो 46 को कैसे लिखोगे आप? एनीवन? 44 प्लस 2। कैसे लिख सकते हो? हाँ, 44 प्लस 2। 44 प्लस 2, बट 44 का फिर स्क्वायर करना आपके लिए नियरली टू इम्पॉसिबल होगा विदाउट कैलकुलेटर। तो 40 प्लस तो 6। आपको ये ऐसे, हाँ, 50 माइनस 40 4। प्लस 6 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, बट मैंने क्या बोला, ये नंबर जो है बने उतना आपको कैसे सेट करना है, ये बिलो 5 हो, तो क्या क्या लिखोगे इसको? 50 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ यू एक्सपांड दिस टर्म। So 50 square minus 2 into first second plus second square. This will be 5 square, that is 25, and double zero. Minus this will be 10 into 4 40, and ye 0. So 400 plus 16. ये बन जाएगा 2100 and plus 16, तो 2116, 2116. नाउ 53 क्यूब कैसे लिख सकते हो इसको? सिक्सटी माइनस 7 या 50 प्लस 3, क्या क्या ज्यादा सुटेबल होगा? 50 plus 3. यस,
अगर आपको 55 दिया होता तो कौन सा इजी रहता, 60 माइनस 5 या 50 प्लस 5? 50 plus 5. यस, गुड। तो क्यूब है तो फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर and then second term cube. This will be 125 and 000 plus 3 into 3 9, 5 का square 25 and 00 plus 150 into 9 plus 27. So 125 000 plus 9 into 25 क्या होगा? 22500. Yes, 225 into double or double zero plus 15 into 9 क्या होगा? 1350. Yes, 1350 and plus 27. So the answer is, addition करो. One 48,877. 148,877. ओके, अगर आप 53 का क्यूब कैलकुलेट करते हो तो यही आंसर आएगा, राइट? टैली करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो. Now here this will be 40 plus 2 whole cube, right? No, everyone थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको ले दो 48. No, 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 38. 38. Everyone write down 38. अब solve करो. So this will be 40 minus 2 whole cube.
क्या आया आंसर? एनीवन? 54872. ओके 54872। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, पूरा कुछ नहीं लिख रही कैलकुलेशन। फाइव फोर एट सेवन टू। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, और बाकी है इसमें हम लिखते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम लिखते हैं 205 इंटू 192। 205 इंटू 192 and second will be 86 into 82. Oh, okay, see this। अभी तक आपने सम नंबर स्क्वायर सम नंबर क्यूब ये देखा है, ठीक है। अब ये क्या है, तो ऐसे नंबर स्क्वायर नंबर क्यूब ऐसा नहीं है, दो अलग अलग से नंबर्स दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कोई दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम सब ऐसे ऐसे स्प्लिट करते हैं, बट यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए, ऐसे इसको स्प्लिट करना है। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आप ये प्लस माइनस आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हो? ये नंबर जो यहाँ पे आ रहा है वो आपका सेम होना चाहिए। ये नंबर्स अलग अलग है, कोई बात नहीं, प्लस माइनस जो भी हो। कैसे 200 लिख plus सकते 5 और 200 हो? minus 8. वेरी गुड। 200 प्लस 5 एंड 200 माइनस 8। सी ये 5 से बढ़ गया, बट ठीक है, सेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन दोनों को हमें सेम नंबर में स्प्लिट करना था, इसलिए ये 5 से बढ़ गया, कोई बात नहीं। नाउ अगर आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने लिखाई है वो अगर आपने ऑब्जर्व की है, तो आपको पता चला होगा कि एक आइडेंटिटी है वो अनयूज्ड है, बाकी सब हमने यूज कर ली है। एक का यूज हमने किया ही नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी कैलकुलेशन में। देन वो क्या है, आइडेंटिटी लिखते हैं हम x इंटू ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी। और इसका एक्सपांशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ऐसा एक्सपांशन है। तो सी दिस एक्स एक्स सेम है, यस। ए और बी, 8 को हम लिख सकते हैं प्लस 200 प्लस माइनस 8, सो बी विल बी माइनस 8, राइट। तो ये आइडेंटिटी का आप यूज करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू 200, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 9, सॉरी माइनस 8। देन दिस विल बी x plus a into x plus b, x plus a, तो 200 plus 5 that is 205 and 200 minus 8 that is 192। so हम लिखते हैं 205 into 192 equals to x square means कि 200 square plus a into b, सर a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू एक्स, तो क्या है x 200 प्लस a इंटू बी दैट इज a इंटू बी। आया समझ में? अब कैलकुलेशन करो इसकी, तो 2 इंटू 2 4 और 4 जीरोस प्लस ये क्या बना, तो माइनस 3 इंटू 200 और ये क्या बना, माइनस 40। तो 40,000 माइनस 600 माइनस 40,
Calculation is क्या होगी कैलकुलेशन? 39360. यस 39360। आया समझ में सबको कि अगर ऐसे नंबर्स दिए हैं तो क्या करना है? एंड नेक्स्ट कैसे लिख सकते हो इसको? 81 plus 5 and 81 plus 1. 80 प्लस ओके नो तो 81 का स्क्वायर करना फिर क्या करोगे आप? ठीक है तो बेटर कि 80 तो 80 प्लस रहा. 6 यस 80 प्लस 6 सॉरी स्क्वायर नहीं और 80 प्लस 2 सेम वैसे लिखना है सब कुछ। आंसर इज अब हो जाना चाहिए। 7052. यस वेरी गुड।
नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 4. This was the question number 3, right? Now question number 4. Find the value of 27x cube plus 64y cube if number 1 3x plus 4y equals to 10 and xy equals to 20, and the second is 3x plus 4y equals to 13 divided by 2 and xy equals to 2 divided by 3. ओके, आप सोच सकते हो कि कौन सी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे. We are asked to find this value of this term using these two values. How to find? સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ. Substitution method કઈ રીતે? x ની કા y ની વેલ્યુ લઈ લેવાની ને પછી બીજી એમાં ઇનપુટ કરી દેવાની. તો એક્સ વાય નો યુઝ ક્યાં થશે તમારે? ઓકે, ઠીક છે, આઈડેન્ટિટી નો યુઝ કરવાનો છે અહીંયા પેલા તો. સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ થઈ ગઈ છે ક્લાસમાં? હા કે ના? બાકી છે બધું. ઓકે, સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ યસ રાઈટ, બટ એલ્જેબ્રિક આઈડેન્ટિટી નો યુઝ કરવાનો છે તો શું કરશો? મેમ પેલા ઓલું 27x નો એનો પેલા આન્સર લઈ લેવાનો ને, એટલે How? 3x + 4y હોલ ક્યુબ આવે. હા, એટલે પછી જો 3x + 4y એટલે 10 મૂકીને એમ વેલ્યુ ન કરી શકી. यस, वेरी गुड, सही है. ओके, हम सी हमारे पास क्यूब वाली दो फॉर्मूला है. ओके, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली और ये एक एक्स प्लस वाई होल क्यूब. ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? तो एक्स प्लस वाई, पहली नज़र से आपको ऐसा लगेगा कि अब अगर आप 3x होल क्यूब प्लस 4y होल क्यूब ये आप वैल्यू अप्लाई करोगे, चलो यही हम रखते हैं यहाँ पे 27 होल क्यूब एंड 64y क्यूब. So this will be 3x plus 4y into 3x square minus 3x into 4y plus 4y square. आपको ऐसा लगेगा कि ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, बट नो. Why? Because these terms are given, x into y, these values are given, but what about these terms? 9x square plus 16y square. We don't have any value for these terms, so we cannot apply this term. If instead we can use this term 3x plus 4y whole cube. This will be first term cube plus second term cube plus जो ब्रैकेट वाली फॉर्मूला है ना उसका यूज करते हैं 3x into 4y प्लस इंटू 3x प्लस 4y. क्यूब वाली मैंने दो फॉर्मूला लगा लिखाई थी, ठीक है, और करके. इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों टर्म्स को, तो जो हमारी क्यूब में सेकेंड टर्म हो रही है वही मिलेगी. फिर इन दोनों का आप अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो जो थर्ड वाली टर्म क्यूब में मिल रही है 3xy स्क्वायर वाली, तो वो वाली टर्म मिलेगी. तो अल्टीमेटली वो और ये दोनों सेम ही है. नाउ सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू. उसके अलावा सबकी वैल्यू हमारे पास है या नहीं? यस, दिस वन वी नो, it's 10. Then x into y, the rest of here are the constant. So x into y is also given, it's 20, and again 3x plus 4y is 10. So we can find the value of this term, right? तो हमें ये वाली फॉर्मूला का यूज करना है.
Got it, everyone? Or not? Didn't get any response. ओके हम क्या करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों के दो केसेस दिए हैं, मीन्स कि हम जो फॉर्मूला का यूज करेंगे दोनों केसेस के लिए अप्लाई होगा। तो हम ओवरऑल पहले हम इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, वो वाली फॉर्मूला पहले बना देते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस फॉर्मूला। दिस विल बी फर्स्ट टर्म क्यूब, सेकेंड टर्म क्यूब, plus 3 into first term into second term into first plus second। ये याद है सबको ये फॉर्मूला या नहीं? यस मैम। ओके, सो 3x plus 4y whole cube becomes, this will be 27 cube plus 64y cube plus this 9 into 4 36 xy into 3x plus 4y. Now we want to find the value of this term, so let us make this as subject. So ये इसी साइड रहेगा, ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको इस साइड लेके आओ तो क्या होगी, ये टर्म तो है ही, ये पॉजिटिव से हो जाएगी नेगेटिव क्योंकि इक्वल टू के इस साइड आ रही है, इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 64y क्यूब। जनरली जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, तो जो भी पोजीशंस है इन दोनों की उनको इंटरचेंज कर दो। Okay, now see we have all these values, so accordingly we can find the value of this term। तो ये फॉर्मूला जो है वो दोनों केसेस में यूज होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। Now what will we do, we take the first case, so number 1 क्या है, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 दिया है और xy 20 दिया है, और वो वैल्यू जो हमें बोला है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन 1 राइट डाउन, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है वो लिख दो, क्या है, तो 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब इक्वल्स टू 3x प्लस 4y होल क्यूब माइनस 36xy इंटू 3x प्लस 4y, ऐसा ही है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन द फर्स्ट केस द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y इज गिवन 10 and xy is given 20 and also this is 10. This becomes 1000 minus 36 into 2, 72 and 00. So this will be minus 6200. So in first case the answer of this value of this is minus 6200. મેમ આને પહેલાની સ્લાઇડ કરો તો 1 મિનિટ। ઓકે ડન।
Similarly, find out this value for the second term, for the second case. So again from equation 1 खुद से सॉल्व करो. फ्रैक्शन में आंसर लाना है आपको. ओके गाइस, आई वांट टू आस्क कि सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है या नहीं. यस, नो मैम. ले ली है. ओके, जिनके पास है उनका एक बेनिफिट है, आपकी जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स है ना वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलसी से. हाँ, बट जो बीच वाली टर्म्स का कैलकुलेशन होगा, जो मीन्स की उसमें सिंप्लीफिकेशन आएगा, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा. बट यू कैन हैव द फाइनल आंसर इन द फ्रैक्शन आल्सो in the calculator. Like if you do 1 divided by 5, then you will get some decimal number in the answer in calculator, right? But कोई ऐसा decimal number आप रखो तो उसको आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो कैलसी से. Do you know how to calculate? ओके, एनीवन किसने सॉल्व किया या नहीं? 3 -3237/24. माइनस नेगेटिव क्यों आया? योर आंसर शुड बी इन पॉजिटिव. योर आंसर शुड बी पॉजिटिव टर्म. नो, योर आंसर इज रॉन्ग. 13 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है. ये फिर 36xy is given 2/3 and again 13 divided by 2. अब आप ये कैलसी से कैलकुलेट करो ना, सिखाती हूँ कैसे कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करोगे, आपको फ्रैक्शन वाला आंसर मिलेगा. कैलसी से ये टर्म कैलकुलेट यस, करो, मारे 13 रॉन्ग डिवाइडेड बाई 2. थोडं. हाँ, जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो कैलकुलेट करेगा 13 डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब, ठीक है. 13 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ब्रैकेट करो, फिर 13 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट ओवर, और फिर ये वाली साइन दिखेगी. इनको फॉलो करो.
देन -36 माइनस करके ब्रैकेट, 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट ओवर इक्वल टू। जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये कमांड आप फॉलो करो तो आपको कोई फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल वाला आंसर मिलेगा। या किसी ने ये 274/5/8 એવું કાંક આવે છે. नो 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 साइंटिफिक યસ મેમ એ જ कैलकुलेटर આવ્યું. जिनके पास है वो मुझे बताओ। એટલે મેમ આખી ટર્મ નું કેલ્ક્યુલેશન. હા, આખી ટર્મનું કેલ્ક્યુલેશન સાથે થાય સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટરમાં। मैम આ વસ્તુ 118.625 11 8.625 ओके, उसको ऐसे ही रखना, मीन्स की डिलीट मत कर देना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपको ऊपर आपको एक तो बटन दिखेगा ऐसा A/B/C ऐसा बटन दिखेगा, दिख रहा है कहीं पे? Yes. ठीक है, यस उसके ऊपर हमें ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, हमें D/C के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है। अब वो वाला कौन से कलर का है नंबर, ये जो नंबर लिखा है वो कौन से कलर का है? येलो कलर का आई थिंक, या नहीं? Yes, तो शिफ्ट नहीं करवाना. हाँ, तो शिफ्ट आपको जो की दिख रही है वो अगर येलो कलर की है तो शिफ्ट और ये मीन्स कि ये वाला बटन दबाओ तो आपको आंसर कुछ ऐसा दिखेगा 949 फिर ऐसे करके 8। मिला या नहीं? यस और नॉट? और स्टिल कैलकुलेटिंग? Guys, I'm not getting any answer from you. मैम आई डिडंट गेट लाइक सिंटैक्स एरर आ रहा है। आपने ये आंसर आपको मिला, फिर आपने मीन्स की AC बटन नहीं दबा दिया है ना? नहीं ये आंसर था ही आपके पास उसमें। फिर हाँ से कैलकुलेट करो, फिर से कैलकुलेट करो। ब्रैकेट 13 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब माइनस ये -118 લખવાનું ને. ના 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 આ આન્સર આવશે, આ આન્સર આવશે આવું। યસ મેમ આવ્યું. બરાબર? હવે શું કરવાનું? હા, આવો આન્સર આવ્યો। AC બટન નહીં દબાવતા, હવે શિફ્ટ ધેન આ વાળી A/D/C मीन्स કે તમારો કમાન્ડ થશે D/C વાળો। शिफ्ट के बाद ये अब आपको प्रेस ઓકે करना મેમ है। આવ્યું આન્સર यस 949 પછી L જેવું છે અને પછી 8. हाँ, यस सी मैंने लिखा है यहाँ पे, ऐसा आंसर मिला होगा आपको, Yes, yes. ठीक है। तो दिस मीन्स दिस आंसर इज 949/8। गॉट इट? बट आपको मीन्स कि ये टैली करने के लिए आप कर सकते हो, आपको बीच वाली ये कैलकुलेशन है वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो हाँ, जब भी आपको ठीक है कि एक आपका मार्क कट हो जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी आप यूज कर सकते हो उसका, ठीक है। ये 36 यहाँ से काउंट कट हो जाएंगे, ये 2 कट हो जाएंगे। नाउ 12 इंटू 13 156।
आप इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था शॉर्टकट, याद रखना ये कैसे करना है तो। મેમ તો આપણે ફ્રેક્શન માં જ આન્સર રાખવાનો હોય? હા, અગર તમને ટર્મ આપેલી છે ફ્રેક્શનમાં તો આન્સર તમારો ફ્રેક્શનમાં હોવો જોઈએ। જનરલી આપણે આવી રીતે આ મેનરમાં ચાલીએ। જો તમને ક્વેશ્ચનમાં આન્સર મીન્સ કે વેલ્યુ છે તે ડેસિમલમાં આપેલી હોય તો આન્સર ડેસિમલમાં લાવવાનો। મેમ હમ તો ઈ તમે ઓલું કીધું a into b by c ને ઓલું shift વાળું, તો એનો યુઝ ક્યાં થાય? તો a into b by c નો તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં આને કેલ્ક્યુલેટ કર્યો બરાબર, તો તમને આન્સર શું મળશે? 118 પોઈન્ટ સમથિંગ, મીન્સ કે તમને ડેસિમલમાં આન્સર મળ્યો, પણ આપણને જોઈએ છે ફ્રેક્શનમાં। એટલે આ તો ખાલી વચ્ચેની ટર્મ જસ્ટ આપણે કાઉન્ટ કરી, બરાબર, અહીંયા લખી છે। પણ સપોઝ તમારે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ તમને આન્સર જોઈએ છે તો તમે કઈ રીતે લાવશો? આવી કેલ્ક્યુલેશન કરવા બેસશો કે ડિરેક્ટલી આ કેલ્ક્યુલેશન કેલ્ક્યુલેટરમાં કરીને ડિરેક્ટલી તમને આન્સર મળી જશે 4949/8। તો જ્યારે તમારા વચ્ચેના સ્ટેપ સ્કીપ કરવાના હોય ત્યારે તમને આ યુઝ આવશે, ત્યારે એ જે શિફ્ટ પ્લસ a b by c, બરાબર। ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? યસ મેમ। ओके, वैसे एज अ टीचर मुझे ये आपको शॉर्टकट नहीं सिखाना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट पेज आते हैं। अब यहाँ पे ट्यूटोरियल 1.1 खत्म होता है। नाउ 1.4 किया था, राइट? नाउ ट्यूटोरियल 1.5, राइट डाउन एवरीवन, tutorial 1.5, and the heading for it is linear equations in two variables, in two variables। बहुत छोटा है ये ट्यूटोरियल, हम जल्दी जल्दी से लिखेंगे। राइट डाउन एवरीवन हेडिंग, okay, let's start the question। Write down, check, મેમ હજી કેટલી વાર છે? 12-13 થયા છે, 12:30 સુધી આપણે કરીએ, બરાબર? આ ફટાફટ પતી જશે। આમાં જસ્ટ 6 to 7 ક્વેશ્ચન્સ છે, એ પણ ખાલી યસ નો ના આન્સર આપવાના છે। check whether the following equations are linear or not, linear or not। ग्रामेटिकली वेदर में ही और नॉट आ जाता है तो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर बोलते हैं पहले है, तो जो भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स है इक्वेशन में, भी वेरिएबल वाली टर्म्स है, वेरिएबल वाली जितनी भी टर्म्स है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। नाउ टर्म की डिग्री 1 मीन्स की क्या? तो उसमें जितने वेरिएबल्स है उनकी डिग्री मीन्स की उनका ऑर्डर सॉरी उनका पावर 1 होना चाहिए। लेट्स सी इफ वी राइट लाइक दिस, तो वेरिएबल वाली टर्म्स कौन कौन सी है? तो ये दो, ये दो। इसमें वेरिएबल नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करना है, हम सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करेंगे। नाउ सी, फर्स्ट टर्म में कितने वेरिएबल है? तो एक वेरिएबल है। अब उसका पावर कितना है? 2। મેમ તો और આ इसका भी, हाँ, તો આ લિનિયર થોડી કહેવાય। નથી, એટલે જ ખાલી જસ્ટ સમજાવું છું। તો
सेकेंड टर्म है वो 4y², इसमें वेरिएबल जो है उसका पावर क्या है 2, तो ये लीनियर नहीं है। इफ वी राइट लाइक दिस, अब दी सी इसका पावर 1 हो गया बट इसका तो पावर 2 है, तो ये भी लीनियर नहीं है। बट इफ वी राइट लाइक दिस, देन बोथ द टर्म्स हैव 1 डिग्री, so this is a linear equation. Got it everyone? कि इक्वेशन में जितनी भी वेरिएबल वाली टर्म्स है उसकी इन सब की वेरिएबल मीन्स की उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, वो टर्म्स की डिग्री 1 होनी चाहिए सभी टर्म्स की। तो अगर ऐसा है ये फुलफिल हो रहा है तो वो इक्वेशन को हम लीनियर बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लिखती हूँ यहाँ पे, तो वो देखते हैं। ओके मुझे ये लास्ट स्लाइड है। ओके लेट्स सी कि कौन से इक्वेशंस लीनियर है कौन से नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्व द फर्स्ट इक्वेशन, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन, इज दिस लीनियर? Yes. Yes, we have two terms in variables. Observe the degree of the variables. This term डिग्री क्या है 1, इसकी भी डिग्री क्या है 1। हाँ, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं तो उसको कंसिडर करना ही नहीं है। तो yes, this is a linear equation. Now second one is this? No. No. Yes. Why? Because this both terms have degree 2. आप मार्किंग कर सकते हो अलग पेन से या पेंसिल से। नाउ हियर इज दिस? Yes. Yes. ओके दोनों की डिग्री कैसी है 1 1, बट सी दिस, इसकी डिग्री ये है 1 और ये है 1, तो डिग्री क्या हुई 1 + 1 2 हो गई। तो अब बोल सकते हैं इसको हम कि ये 1 है ये 1 है, डिग्री 1 + 1 क्या हो गया 2। तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये ध्यान में रखना है खास करके आपको। ठीक है, हियर इज दिस और नॉट? આ પોલિનોમિયલ જ નથી ને? यस वेरी गुड, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। कैसे? तो ये होगा x⁻⁻1 + 5⁻⁻1। तो सी इसकी डिग्री 1 है नहीं है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो नो। ओके नेक्स्ट,
इसको अगर रीराइट करें हम, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों साइड अगर स्क्वायर लेंगे क्योंकि इसको हटाना है हमें, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, दैट इज 100. नाउ सी, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? डेफिनेटली नॉट, राइट? मैम हम्म, ઓલામાં તો 1/2 પાવર છે તો યસ નો આવે. 1/2 પાવર છે તો કઈ રીતે આવે? આપણે આને સ્ક્વેર રીરાઇટ સ્ક્વેર બે ના કરીએ. કેન્સલ ના થઈ જાય મેમ? નહીં નહીં નહીં, આવી રીતે હોય 2xy પ્લસ વાય સ્ક્વેર ને રેઝ ટુ 1/2, તો આ થાય x પ્લસ વાય હોલ સ્ક્વેર ને એના રેઝ ટુ 1/2, તો આ 2 2 કેન્સલ થાય ને. આને આને હોલ સ્ક્વેર નહીં લખાય આપણે. આવું હોત એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ વાય સ્ક્વેર રેઝ ટુ 1/2 તો એને એક્સ વાય લખાય. વચ્ચે પોઝિટિવ છે તો આપણે આવી રીતે એક્સ પ્લસ વાય ના લખાય આને. ગોટ ઇટ? કેમ કે એક્સ પ્લસ વાય હોલ સ્ક્વેર લખવા માટે આની ફોર્મ્યુલા શું બને છે? મિડલ ટર્મ ક્યાં આપણી પાસે નથી. ખ્યાલ આવે છે? યસ મેમ. So this is not a linear equation. नेक्स्ट टर्म, इसको रीराइट करो क्योंकि स्क्वायर है दोनों साइड, दोनों साइड सॉरी स्क्वायर रूट है, दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5x. नाउ इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? हाँ या ना? યસ. हाँ है. नेक्स्ट, दोनों साइड क्यूब रूट्स है, क्यूब करो, दोनों साइड क्यूब अप्लाई करो, तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा ऐसा. इज दिस? નો. नो. गुड. तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ओके. अब इसके बाद जो आपने बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आएगा, वो ट्यूटोरियल. ओके. और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर में एक जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, तो आपको ग्राफ पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपके पास एटलीस्ट 10 ग्राफ्स होने चाहिए. 10 से ज़्यादा हो सकते हैं बट नॉट श्योर, बट एटलीस्ट 10 होने चाहिए. એટલે થિયરીમાં આવશે ટ્યુટોરિયલમાં? થિયોરીમાં પણ મે બી મેડમ એક બે ત્રણ સમ કરાવે અને ટ્યુટોરિયલમાં પણ આવશે. ओके. तो आप वो ध्यान में रखना. वैसे इसके पहले 3 मेथड्स होगी, फिर बाद में मे बी मैडम आपको ग्राफिकल मेथड कराते हैं. आई डोंट नो कि मैडम कौन सी मेथड पहले कराएंगे, कौन सी बाद में. तो यहाँ पे ये ट्यूटोरियल 1.5 भी खत्म होता है. ओके. So now everyone, you can give the attendance in the chat box. And you can leave. બધા અલગ અલગ કેમ આપે છે, અલગ અલગ ટાઈપની અટેન્ડન્સ? કોઈ એક કોમન રાખો. Everyone again give the attendance please properly. જેમણે ડીએફ પછી સ્પેસ કરી છે તો એ રીતે પણ નહીં, તો સ્પેસ નહીં કરો કેમ કે ફિલ્ટર નહીં થાય ડેટા તમારો. ડીએફ without space, dash without space,
લાસ્ટ 3 નંબર્સ આટલું લખો એટલું ઇનફ રહેશે. ओके ओनली 6 स्टूडेंट्स ही थे यहाँ पे. वाई सो बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ऑल टाइम ऐसा ही होता है या होते हैं बाकी के स्टूडेंट्स? ત્રણ જણા વયા ગયા મેમ, ओके ओके બાકી બરોબર એટલા જ હોય અમે. बराबर. Okay, so guys, you can leave and we'll meet in the next week. Goodbye.